study chapter 9. Chapter 9 name is Our Environment. Excludes first is our environment, second is pollution, third is air pollution, fourth is water pollution, fifth is noise pollution, sixth is natural resources, seventh is greenhouse gases, eighth is prevention of air pollution, ninth is saving the environment, 10th is soil and land pollution, last is recycling. Look at the pictures given below and describe them in your own words. नीचे आपको जो pictures दे रखी हैं उनको आपको ध्यान से देखना है और आपको उनको अपने वर्ड पे डिस्क्राइब भी करना है. This picture shows rural area and this picture shows urban area. Our environment. Do you know what the word environment means? क्या आप जानते हैं जो word है environment इसका मतलब क्या है? Your environment is everything that is around you wherever you happen to be. जो आपका environment है वो आपके आसपास सभी चीज़ जो भी है वो क्या होता है क्या नहीं होता वो सब environment ही है. Your house, your school, the roads, the playing fields, the shops and the people of the city you live in and the air you breathe all form part of your environment. ये सभी चीज़ मिलकर के हमारे environment के part को ही form करते हैं बनाते हैं. On a wider scale, the environment of all living creatures on the earth. और वाइडल स्केल पर जो हमारा environment है जहाँ सभी लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं वो है अर्थ पर ही सब रहते हैं. This picture shows fresh environment and this picture shows dirty environment. The environment has an effect on you. पर्यावरण का it means environment का आपके ऊपर effect पड़ता है. You also have an effect on the environment. और आप भी environment पर effect करते हो. When you eat something or throw something away or travel to school in a car or a bus, you have having an effect on the environment. जब भी आप कुछ चीज़ खाते हो उसको बाहर ऐसे ही फेंक देते हो, आप ट्रैवल करते हो स्कूल जाने के लिए कार में या बस में या फिर कुछ भी चीज़ें सभी environment का इफेक्ट आप करते हो. If you get a headache or catch a cold, it may be that the environment has had an effect on you. यदि आपको हेडेक हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, फिर आप कोल्ड हो रहा है, जुकाम हो रहा है, तो उसका मतलब ये है जो environment है वो भी आपको इफेक्ट कर रहा है. To live a life of ease, we all have various needs. हम सभी अपनी लाइफ को आसानी से जीते हैं. हमें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है. We need food and water, we need clothes and shelter, we need heat and light, and we need hundreds of other things as well. हमें खाने की पानी की ज़रूरत भी होती है, कपड़ों की ज़रूरत भी होती है, ज़रूरत भी होती है, heat and light की भी ज़रूरत होती है और हंड्रेड ऑफ अदर थिंग्स ऐसे हैं जिनकी भी हमें ज़रूरत होती है. All our needs produce waste of one kind or another. जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वेस्ट और अलग तरीके के काइंड को भी प्रोड्यूस करते हैं. Our needs change the environment. जो हमारी ज़रूरत होती है वो environment को चेंज कर देती है. Our action have an effect on the environment. जो हमारे actions होते हैं वो भी environment पर effect करते हैं. Next is pollution. Man has been continuously changing his environment, thereby disturbing the delicate balance in nature between biotic and abiotic components. जो man है वो लगातार environment को change कर रहा है उसको डिस्टर्ब करने के द्वारा और जो डेलिकेट बैलेंस है नेचर के अंदर बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में उसको में भी डिस्टर्बिंग कर रहा है. पॉल्यूशन इज द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस इन एयर वाटर और सॉइल दैट आर हार्मफुल टू लिविंग बीइंग्स. जो पॉल्यूशन है वो सब्सटेंसेस है जो हवा के अंदर रिलीज हो जाता है, पानी के अंदर, सॉइल के अंदर रिलीज हो जाता है जो काफ़ी हार्मफुल होता है हमारे ये सभी लिविंग बीइंग्स के लिए. these harmful substances are called pollutants. इन harmful substances को हम pollutants बोलते हैं. Natural resources are disappearing or being polluted by human activities. Natural resources हैं वो disappearing हो जाते हैं और polluted हो जाते हैं human activities के द्वारा. Pollution is an environmental problem. Pollution है वो environmental problem है. It leads to disease and many other problems. इसके कारण काफ़ी सारी बीमारियां भी होती है, काफ़ी other problems भी होती हैं. Classification of pollutants. Pollutants are generally classified into two main groups. हमने pollutants को जनरली दो मेन ग्रुप से क्लासिफाई कर रखा है. फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल एंड सेकंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. Pollutants first is biodegradable and second is non biodegradable. Pollutants that can be broken down into simple compounds by the action of microbes. Example wood, paper, agriculture waste, kitchen waste, etc. ये pollutants जो सिंपल कंपाउंड से ब्रोक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं माइक्रोब्स के एक्शन के द्वारा, उनको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं. एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको वुड, पेपर, एग्रीकल्चर वेस्ट, किचन वेस्ट, एक्सेट्रा. And pollutants that cannot be broken down by the action of microbes into simple compound. Example pesticides, DDT, plastics, aluminum foil, etc. वे pollutants जो microbes एक्शन के द्वारा सिंपल कंपाउंड्स में ब्रोक डाउन नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं, उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं. एग्जाम्पल पेस्टिसाइड्स, DDT, प्लास्टिक्स, एल्यूमिनियम फॉइल, एक्सेट्रा.
एयर पोल्यूशन, ऑल लिविंग थिंग्स नीड क्लीन एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ। सभी लिविंग थिंग्स को ज़रूरत होती है फ्रेश और साफ एयर की ब्रेथ लेने के लिए, बट नाउ डेज इट इज़ नॉट ईजी टू गेट क्लीन एंड फ्रेश एयर टू ब्रेथ, स्पेशली इन बिग सिटीज़। लेकिन आज के टाइम पर साफ एयर मिलना, फ्रेश एयर मिलना ब्रेथ लेने के लिए पॉसिबल नहीं है, ईजी नहीं है, स्पेशली बड़े बड़े शहरों में, बिग सिटीज़ में। बाय ऐसा क्यों? वी नो दैट ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, हम जानते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ट्रीज हैव बीन कट डाउन एंड ओनली फ्यू आर लेफ्ट। लेकिन काफ़ी सारे पेड़ पौधे कट गए हैं और उनमें से कुछ ही बचे हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन फैक्ट्रीज, पावर स्टेशन एंड व्हीकल्स इंक्रीजिंग इन एयर पोल्यूशन डे बाई डे। जो फ्यूल्स का फैक्ट्रीज वगैरह में जलना, पावर स्टेशन, व्हीकल्स वगैरह के द्वारा एयर पोल्यूशन का इंक्रीज होना, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। Often people burn plastic bags, rubber tires, tubes and other materials that release poisonous gases into the air and pollute it. और लगातार जो लोग हैं वे प्लास्टिक बैग्स, रबर टायर्स, ट्यूब्स और अदर मटेरियल्स को भी जला रहे हैं, जिस वजह से पॉइजनस गैसेज रिलीज हो रही है एयर के अंदर और एयर को पॉल्यूट कर रही है। एंड दिस पिक्चर शोज एयर पोल्यूशन। दिस पॉल्यूटेड एयर इज नॉट गुड फॉर ब्रीथिंग। ये जो पॉल्यूटेड एयर है ये सांस लेने के लिए अच्छी नहीं है, गुड नहीं है। इट मे कोज मैनी डिजीजेस लाइक अस्थमा, ब्रॉन्चिस एक्सेट्रा दैट इफेक्ट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके कारण काफ़ी सारी डिसीजेज भी हो सकती हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रॉन्चिस एक्सेट्रा, और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट भी कर सकते हैं। Breathing polluted air may also cause dizziness, headache, choking, watering of eyes, etc. यदि हम polluted air में सांस लेंगे तो हमें इसके कारण काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे डिजीनेस होना, हेडेक होना, चॉकिंग हो जाना, आइस वगैरह में से पानी जाना, वॉटरिंग होना, अच्छा। इट में इवन कोज कैंसर, इसके कारण कैंसर भी हो सकता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो बैडली अफेक्टेड बाय द एयर पोल्यूशन। प्लांट्स और एनिमल्स भी काफ़ी अफेक्टेड हुए हैं एयर पोल्यूशन द्वारा। बर्निंग ऑफ फैट रिकॉर्ड्स इज अनदर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। पटाखे वगैरह जलाना ये दूसरा कारण है एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन कॉजेज मैनी डिसीजेज। एयर पोल्यूशन के कारण काफ़ी सारी डिसीजेज भी होती हैं। इन हाईली पॉल्यूटेड एरियाज मैनी पीपल सफर फ्रॉम ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स। काफ़ी सारे पॉल्यूटेड एरियाज में काफ़ी सारे लोग ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स से भी सफ़र करते हैं, गुजरते हैं। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑल्सो स्लोज डाउन, और जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो भी स्लोज डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। एयर पोल्यूशन में भी डिफाइंड एज द अकरेंस ऑफ रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर of poison materials or gases which are harmful to man, vegetation, animals और buildings। जो एयर पोल्यूशन है वो डिफाइन किया जाता है एज द अकरेंस या फिर रिलीज होना, हार्मफुल गैसेस का एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होना, वो मटेरियल्स वे गैसेस भी हार्मफुल होती है मैन, वेजिटेशन, एनिमल्स और बिल्डिंग्स के लिए। द मेन सोर्सेज एंड रीजन ऑफ एयर पोल्यूशन आर गिवन बिलो। जो मेन सोर्सेज हैं और जो रीजन दे रखे हैं एयर पोल्यूशन के वो आपको नीचे दे रखे हैं। फर्स्ट इज डिफोरेस्टेशन टेक्स प्लेस व्हेन मैन कट्स डाउन ट्रीज एंड फॉरेस्ट फॉर वुड और रेजिडेंशियल पर्पसेस। डिफोरेस्टेशन तब होता है जब मैन अपने पर्पसेस के लिए, अपने रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए, वुड्स के लिए, फॉरेस्ट और ट्रीज वगैरह को काटते हैं। सेकेंड इज व्हीकल्स विच रन ऑन पेट्रोल और डीजल रिलीज स्मॉग, फूड एंड हार्मफुल गैसेज इनटू द एयर। वे व्हीकल्स जो पेट्रोल या डीजल पर चलते हैं वे स्मॉग, फूड, हार्मफुल गैसेस को रिलीज करते हैं एयर के अंदर। इट पॉल्यूट द एयर इन सिटीज एंड लार्ज टाउन्स। ये एयर को पॉल्यूट करते हैं सिटीज वगैरह में और लार्ज टाउन्स में। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग वार्स chemical compounds are released into the air when explosion of different kinds of bombs take place। वार के दौरान केमिकल कंपाउंड जो होते हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं एयर के अंदर जब एक्सप्लोजन होता है अलग अलग तरीके के बॉम्ब्स का। दीज हार्मफुल केमिकल कंपाउंड्स पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। ये जो हार्मफुल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ये भी एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट, देयर इज एन इंक्रीज इन गैसेज एंड पार्टिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। इससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है गैसेज का, जैसे कि पार्टिकल्स वगैरह का जो फैक्ट्रीज वगैरह में से इंडस्ट्रीज वगैरह में निकलते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। Next, trees purify air by decreasing the carbon dioxide content of air during photosynthesis and release oxygen। जो ट्रीज होते हैं वही एयर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके एयर के कंटेंट के अंदर फोटोसिंथेसिस के दौरान और ऑक्सीजन को रिलीज करके। हेंस डिफोरेस्टेशन आल्सो कॉज एयर पोल्यूशन। मतलब जो डिफोरेस्टेशन है वो भी एयर पोल्यूशन का कारण है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसेज। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेज। जो अर्थ एटमॉस्फेयर है वो गैसेज का ब्लैंकेट है। Some of these gases like carbon dioxide, nitrous oxide, methane and water vapor have the property of trapping energy from the sun। कुछ गैसेज ऐसी होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, इनके पास प्रॉपर्टी होती है सन से एनर्जी को ट्रैप करने की।
These gases do not allow the heat to escape back into space. ये जो gases होती हैं allow नहीं करते heat को कि वापस से space में escape कर जाए. They warm up the earth. वे earth को warm up कर देती हैं. These gases are called greenhouse gases and this effect is known as the greenhouse effect. इन gases को हम greenhouse gases बोलते हैं और इस effect को हम greenhouse effect बोलते हैं. This effect means an increase in the concentration of greenhouse gases in the atmosphere, which leads to an increase in the amount of infrared radiation goes to the surface of the earth. इस इफेक्ट का मतलब है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाए एटमॉस्फेयर के अंदर, जो लीड करता है इंफ्रारेड रेडिएशन के अमाउंट को इंक्रीज करता है और अर्थ के सरफेस के पास करता है. इन दिस पिक्चर शोज ग्रीन हाउस इफेक्ट. Carbon dioxide, the amount of carbon dioxide in the atmosphere has been increasing gradually over the last 100 years. जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है एटमॉस्फेयर के अंदर वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होती जा रही है पिछले 100 साल पहले से. द मेन रीजन आर द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट. इसका मेन रीजन है फॉसिल फ्यूल्स का जलना और रेन फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होना. इफ कार्बन डाइऑक्साइड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एट द प्रेजेंट रेट, मोर heat will be trapped in the atmosphere and the temperature of the earth may increases. यदि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अब प्रेजेंट रेट में भी इंक्रीज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, तो जो काफ़ी ज़्यादा जो हीट होगी वो ट्रैप हो जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर और जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज हो जाएगा. मीथेन. मीथेन इज अ नेचुरल गैस. जो मीथेन है वो नेचुरल गैस है. व्हेन ग्रास ईटिंग एनिमल्स डाइजेस्ट देयर फूड, देयर सिस्टम्स रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ मीथेन गैस इनटू द एटमॉस्फेयर. जब ग्रास ईटिंग एनिमल्स अपने फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं तो जो उनका सिस्टम होता है वो लार्ज क्वांटिटी में मीथेन गैस को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर के अंदर. The waste from animals called manure is used as fertilizer in fields. जो वेस्ट होता है एनिमल्स उसको मैन्योर बोलते हैं, वो यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर फील्ड वगैरह में. दिस रिलीज मोर मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर. ये मीथेन को एटमॉस्फेयर के अंदर काफी ज्यादा रिलीज करते हैं. दिस गैस वार्म्स अप आवर प्लैनेट. की जो गैस होती है हमारे प्लैनेट को वार्म अप कर देती है. नेक्स्ट वाटर वेपर. वाटर वेपर अकाउंट्स फॉर 35 to 75% ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट. जो वाटर वेपर है वो 35 to 75% है हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट में. नेक्स्ट इज ओजोन. ओजोन इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर. जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है. CFC. CFC it means chlorofluorocarbon is a chemical widely used in refrigerators, air conditioners and in many other industrial purposes. तो CFC है means chlorofluorocarbon है, ये केमिकल है जो वाइडली यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में और काफ़ी अदर इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी. इट टेंड्स टू वार्म अप द एटमॉस्फेयर. ये भी एटमॉस्फेयर वार्म अप करता है. नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर, जैसे आपको कुछ इफेक्ट्स दे रखे हैं एयर पोल्यूशन की. फर्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग. एक्सेसिव स्मोक इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. एक्सेसिव स्मोक कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को इंक्रीज कर देता है एयर के अंदर. दिस गैस डज नॉट लेट द हीट एस्केप फ्रॉम द अर्थ. और जो गैस होती है ये हीट को अर्थ से एस्केप होने नहीं देती है. तो द अर्थ रिटेन मोर हीट एंड कोज एंड इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर. तो जो अर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा हीट को रिटेन करती है और उसके कारण टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है. दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. तो हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. इफ दिस टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीज, आइस एट द पोल्स विल मेल्ट एंड द लार्ज एरिया ऑफ द लैंड विल गेट फ्लडेड. यदि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है तो जो आइस होती है पोल्स पर वो पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है और लार्ज एरिया जो होता है लैंड का वो फ्लडेड हो जाता है. देयर वुड बी डिस्ट्रक्शन ऑल अराउंड. और सभी जगह डिस्ट्रक्शन हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल द एंटार्क्टिक आइस शीट holds nearly 90% of the world's ice and 70% of its fresh water. जो एंटार्क्टिक आइस शीट है वो लगभग 90% वर्ल्ड की आइस को होल्ड करके रखता है और 70% फ्रेश वाटर को होल्ड करके रखता है. If the entire ice sheet were to melt, level would rise up nearly 220 feet or the height of a 20-story building. और जो बची हुई आइस शीट है वो मेल्ट हो जाएगी तो उसका जो लेवल होगा वो राइज हो जाएगा लगभग 220 फीट तक और जो हाइट होगी 20 स्टोरेज बिल्डिंग्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. Second is depletion of ozone layer. Very far above Earth there is a layer in the atmosphere called the ozone layer. इस ऊपर जो ज़रा खतों उनसे लगती है एक लेयर भी होती है एटमॉस्फेयर के अंदर जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. ये हमें सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है, बचाती हैं. सम हार्मफुल गैसेस रिलीज फ्रॉम द अर्थ कॉज होल्स इन द ओजोन लेयर. और कुछ हार्मफुल गैसेस भी रिलीज होती हैं अर्थ से जिसके कारण ओजोन लेयर में होल्स हो जाते हैं. दिस अलाउज द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन टू रीच द अर्थ. ये अलाउ करती है अल्ट्रावायलेट रेज को, सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो उसको अलाउ करती है अर्थ तक पहुँचने के लिए. These rays cause skin cancer and many other skin diseases. ये जो रेज होती है इसके कारण स्किन कैंसर भी हो सकता है और काफ़ी अदर स्किन डिसीजेस भी हो सकती हैं. In this picture shows that pollution can cause many diseases.
Next, third is acid rain. The harmful gases released from the factories and power station mix with water vapor in the air and make harmful acid. ये हार्मफुल गैसेज जो होती हैं वो फैक्ट्रीज पावर स्टेशन से रिलीज होती हैं और वाटर वेपर के साथ मिक्स हो जाती हैं एयर के अंदर और हार्मफुल एसिड्स बनाती हैं. When these acids fall on the soil with rain, it damages our plants, soil, buildings, etc. और जब ये एसिड्स नीचे गिरती हैं सॉइल पर रेन के द्वारा तब ये प्लांट्स को, सॉइल को, बिल्डिंग्स को डैमेज कर देती हैं. दिस रेन इज नोन एज एसिड रेन. इस रेन को रेन बोलते हैं. Prevention of air pollution. First is factories should be set up on the outskirts of the cities. Factories को हमें set up करना चाहिए cities के outskirts पर. The harmful gases and smoke from factories must be filtered before releasing them in order to minimize the air pollution. और जो फैक्ट्रीज वगैरह में स्मोक या हार्मफुल गैसेस वगैरह रिलीज होती हैं उनको फिल्टर करना चाहिए उनको एयर के अंदर रिलीज करने से पहले, जिससे एयर पोल्यूशन मिनिमाइज हो सके, कम हो सके. Secondly, cars, scooters, trucks, and all kinds of vehicles should be checked regularly to make sure that they are not polluting the air. Cars, scooters, trucks और सभी तरीके के व्हीकल्स को हमें चेक करना चाहिए रेगुलरली, देखना चाहिए कि ये एयर को पोल्यूट तो नहीं कर रहे हैं. वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दस रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड. हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए जिससे कि रोड पर नंबर ऑफ व्हीकल्स रिड्यूस हो सके. और इज मोर प्लांट्स एंड ट्रीज शुड बी ग्रोन. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए. प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन इनटू द एयर. जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और हमें एयर के अंदर ऑक्सीजन देते हैं. दस दे हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन. ये भी हेल्प करते हैं एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में, कम करने में. फोर्थ इज वी शुड यूज इको फ्रेंडली फ्यूल्स लाइक सीएनजी. इट मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. हमें इको फ्रेंडली फ्यूल्स का यूज करना चाहिए जैसे कि सीएनजी. सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. इन दिस पिक्चर शोज वन मोर एंड मोर न्यू प्लांट. Water pollution. Water pollution is caused by dumping of pollutants like sewage, garbage, and industrial wastes into water bodies. जो वाटर पोल्यूशन है उसके कारण जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि सीवेज, गार्बेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सभी वाटर बॉडीज में चले जाते हैं. इन हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर रिलीज्ड इनटू वाटर प्रोसेस. वाटर इज पॉल्यूटेड. जब हम अपने हाउस होल्ड मटेरियल को, वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट को, जब हम अपने हाउस होल्ड वेस्ट को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को पानी के अंदर रिलीज कर देते हैं तो जो वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है. सम पीपल बेथ एंड वॉश क्लोथ्स इन रिवर्स. कुछ पीपल रिवर्स में नहाते भी हैं और अपने कपड़े वगैरह भी धोते हैं. दे ऑल्सो पॉल्यूट द वाटर. वे वाटर को पॉल्यूट भी करते हैं. वाटर बॉडीज ऑफर कंटेन डेंजरस केमिकल्स दैट कैन अफेक्ट अवर वाटर बॉडीज होती हैं. वे कुछ डेंजरस केमिकल्स भी कंटेन करते हैं जिस वजह से हमारे जिंदगी पर इफेक्ट हो सकता है. aquatic plants and animals are also affected by polluted water. aquatic plants और animals भी polluted water की वजह से affected होते हैं. Causes of water pollution. First is fertilizers, insecticides, and pesticides. Often farmers add fertilizers to the soil to increase the crop yield. These fertilizers may be carried to the field. जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड करते हैं सोइल के अंदर क्रॉप yield को इंक्रीज करने के लिए. और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वे भी रिवर्स के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं. Insecticides and pesticides which are used to kill insects and pests that harm the crops are also carried to rivers and lakes which pollute the water. तो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है इंसेक्ट्स और पेस्ट को मारने के लिए, वे भी हार्म करते हैं क्रॉप्स को और ये भी कैरी करते हैं रिवर्स, लेक्स वगैरह में जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं. दिस पिक्चर शोज वाटर पॉल्यूशन. Second is industrial waste. Poisonous substances from factories flow into the drains which empty into water bodies such as lakes and rivers. तो poisonous substances होते हैं फैक्ट्रीज वगैरह के, फ्लो हो जाते हैं ड्रेन्स में, जो एम्प्टी कर देते हैं बॉडीज को जैसे कि रिवर्स. They affect plants and humans. ये plants और humans को affect करते हैं. Third is sewage. The drains of the towns, cities and large villages empty out their contents in rivers and lakes. जो drains होते हैं towns के, cities के और large villages के, वे खाली कर देते हैं, पानी निकाल देते हैं इनको rivers और lakes के अंदर. The presence of these pollutants affects aquatic animals, worms and insects that form a part of ecosystem. जो presence होती है pollutants की, affect करता है aquatic animals को, worms को, insects को, जो इकोसिस्टम के पार्ट को फॉर्म करते बनाते हैं. दिस पोल्यूटेंट्स में स्प्रेड डिजीजेस लाइक जॉन्डिस, डिसेंट्री, कॉलरा. और जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये कुछ इन तरह के डिजीज को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं. फॉर दिस केमिकल कंपाउंड्स, डिसॉल्व्ड केमिकल कंपाउंड्स आते हैं इन द ग्राउंड वाटर व्हिच अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ. जो डिसॉल्व्ड हुआ केमिकल कंपाउंड्स होता है वो प्रेजेंट होता है ग्राउंड वाटर के अंदर, जो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है. फिफ्थ इज ऑयल. समटाइम्स ऑयल स्पिल्स फ्रॉम टैंकर्स इनटू द सी, देयरबाय डिस्ट्रॉइंग मैराइन लाइफ. कभी जो ऑयल होता है वो स्पिल हो जाता है टैंकर्स में से सीज वगैरह के अंदर, जिस वजह से मैराइन लाइफ जो होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है. इन द पिक्चर शोज पीपल शुड बी डिस्करेज फ्रॉम पॉल्यूटिंग वाटर.
प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, फैक्ट्रीज शुड बी लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द रिवर्स एंड लेक्स, फैक्ट्रीज वगैरह दूरी पर होनी चाहिए रिवर्स और लेक से। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड नॉट बी अलाउड टू ड्रेन ऑफ इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट को हमें स्ट्रीम्स और रिवर्स वगैरह के अंदर ड्रेन ऑफ नहीं करना चाहिए। Chlorine and other chemicals should be added to water to purify it before it is supplied to the houses for drinking. क्लोरीन और दूसरे केमिकल्स वगैरह को ऐड करना चाहिए पानी के अंदर उसको प्योरीफाई करने के लिए, घरों में पीने के पानी को सप्लाई करने से पहले। पीपल ऑफ विलेजेस शुड बी डिस्करेज फ्रॉम पॉल्यूटिंग वाटर, गाँव के लोगों को डिस्करेज करना चाहिए वाटर को पोल्यूट करने से। कैटल शुड नॉट बी अलाउड टू बेथ नियर रिवर्स, कैटल को अलाउ नहीं करना चाहिए कि रिवर्स के पास नहाने के लिए। Chemicals required for agriculture should be used carefully and in the right quantity, कुछ chemicals required होते हैं agriculture के लिए, उनका हमें carefully use करना चाहिए, right quantity में use करना चाहिए। Soil and land pollution, for soil can get polluted by using excessive amount of chemicals in it for agriculture, जो हमारी soil है वो polluted हो रही है हमारे द्वारा जो हम excessive amount of chemicals का use करते हैं agricultural के लिए। Soil also gets polluted when people bury various waste in it, सॉइल तब भी पॉल्यूट हो जाती है जब पीपल वेस्ट काफ़ी अलग अलग वेस्ट को बरी कर देते हैं उसके अंदर। यू मस्ट हैव सीन पीपल थ्रोइंग प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स एक्सेट्रा हियर एंड देयर, देखिए आपने देखा होगा जो पीपल हैं वे इधर उधर प्लास्टिक की बॉटल से प्लास्टिक बैग वगैरह फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं। दिस इंक्रीज लैंड पोल्यूशन, ये लैंड पोल्यूशन को इंक्रीज करता है। इन दिस पिक्चर शोज लैंड पोल्यूशन, थ्रोइंग प्लास्टिक रबर टायर्स एक्सेट्रा गार्बेज डंप्स कॉजेज लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक रबर ट्यूब्स टायर्स एक्सेट्रा इनको थ्रो करना गार्बेज डंप्स वगैरह में, इसके कारण लैंड पोल्यूशन बढ़ता है। दिस पिक्चर शोज प्लास्टिक बोतल्स। नॉइज पोल्यूशन, हाउ डू यू फील व्हेन यू हियर लाउड एंड नॉइजी साउंड्स फ्रॉम लाउड स्पीकर्स व्हीकल्स एक्सेट्रा, आपको कैसा फील होगा जब आप लाउड साउंड को, नॉइजी साउंड्स को सुनेंगे लाउड स्पीकर्स व्हीकल्स मशीन्स एक्सेट्रा इनमें से। जैसे इट सूट योर ईयर्स, क्या ये आपके कानों को सूट करेंगे? These sounds disturb the quietness of our environment and cause noise pollution, which is very harmful for us. जो साउंड होती है ये हमारे इन्वायरमेंट के क्वाइटनेस को डिस्टर्ब करती है और इसके कारण नॉइज पोल्यूशन भी होता है जो काफ़ी हार्मफुल होता है हमारे लिए। दे मे कॉज इरिटेशन, स्लीपलेसनेस, हेडेक एक्सेट्रा, और इसके कारण इरिटेशन, स्लीपलेसनेस, हेडेक वगैरह भी होता है। सम सीरियस डिसीजेस लाइक डेफनेस और हाई ब्लड प्रेशर टू बी कॉज बाय इट, और कुछ सीरियस डिसीजेस जैसे कि डेफनेस और हाई ब्लड प्रेशर भी इसके कारण होता है। It affects our work efficiency and mental ability badly, ये हमारे वर्क एफिशिएंसी को और मेंटल एबिलिटी को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। Even loud music of the radio, tape recorder और टेलीविजन इज हार्मफुल फॉर अस, यहाँ तक कि जो लाउड म्यूजिक होता है रेडियो पर, टेप रिकॉर्डर या फिर टेलीविजन पर, ये काफी हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। This picture shows noise pollution. Saving the environment, pollution control means preventing the pollutants from contaminating the air, water and soil. पोल्यूशन कंट्रोल का मतलब है जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो एयर वाटर सॉइल को पॉल्यूट करते हैं उनको प्रिवेंट करना। द एनवायरनमेंट एंड इट्स वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैव टू बी कंजर्व्ड फॉर आवर ओन नीड्स एंड फॉर द यूज ऑफ फ्यूचर जनरेशन, जो एनवायरनमेंट के उसके वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें अपनी ज़रूरतों के लिए और आने वाले आगे फ्यूचर जनरेशन के यूज़ के लिए प्रिजर्व करना चाहिए, उसको कंजर्व करना चाहिए। बट इट इज़ ईजियर सैड देन डन, लेकिन ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। लेजिस्लेशन अलोन कैन नॉट हेल्प इट, सिर्फ लेजिस्लेशन ही इसमें हेल्प नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता। ऑल ऑफ अस शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स प्रोटेक्शन, हम सभी को रियलाइज करना पड़ेगा इसकी प्रोटेक्शन की इम्पोर्टेंस को। आवर गवर्नमेंट हैज टेकन सम स्टेप्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड प्रिजर्व द प्रेशियस नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारे गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, कुछ कदम उठाए हैं पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए और हमारे अनमोल नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए। First is at many places such as Himachal Pradesh and Delhi, use of polythene bags has been banned. काफ़ी सारी जगहों पर जैसे कि हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में पॉलीथीन बैग्स का जो यूज़ है वो बैन हो गया है, मना हो गया है। सेकेंड इज प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज बीइंग इनकरेज्ड, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना इंकरेज किया गया है। एवरी ईयर जुलाई 1 इज ऑब्जर्व एज द वन महोत्सव डे, हर साल 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, उस दिन वन महोत्सव डे मनाया जाता है। ऑन दिस डे ट्रीज आर प्लांटेड ऑन लार्ज स्केल, इस दिन पेड़ पौधे को काफ़ी लार्ज स्केल में प्लांट किया जाता है, लगाया जाता है। नेक्स्ट, फार्मर्स आर बीइंग इंकरेज टू यूज़ नेचुरल फर्टिलाइजर्स, फार्मर्स को भी इंकरेज किया गया है नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने के लिए। दिस प्रोवाइड बेटर यील्ड एंड आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। नेक्स्ट इज रिसर्च ऑन वेज टू यूज सोलर एनर्जी इज बीइंग इंकरेज, सोलर एनर्जी के यूज़ को इंकरेज करने के तरीकों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। इट इज़ द ग्रेटेस्ट एंड नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस, ये हमारे लिए काफ़ी ग्रेटेस्ट नेचुरल सोर्स है एनर्जी का।
इट इज़ ऑल्सो पॉल्यूशन फ्री, ये पॉल्यूशन फ्री भी है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो सब्सिडाइजिंग सोलर कुकर, सोलर हीटर्स, एक्चुएटर्स एक्सेट्रा टू मेक देम पॉपुलर। गवर्नमेंट को भी सोलर कुकर, सोलर हीटर्स, एक्चुएटर्स एक्सेट्रा उनको सब्सिडाइजिंग करना चाहिए उनको पॉपुलर बनाने के लिए। नेक्स्ट इज एट सम प्लेसेस फैक्ट्रीज आर बीइंग शिफ्टेड टू फार अवे प्लेसेस फ्रॉम द मेन सिटी। कुछ जगहों पर फैक्ट्रीज वगैरह को शिफ्ट कर दिया गया है मेन सिटी से थोड़ी दूरी पर। दे आर ऑल्सो बीइंग आस्क्ड टू कन्वर्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू हार्मफुल बिफोर रिलीजिंग देम। और उनसे कहा भी गया है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को भी कन्वर्ट करें हार्मलेस वंस में उसको रिलीज करने से पहले। देयर हैज ऑल्सो बीन अ बैन ऑन थ्रोइंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द वाटर सोर्सेज। और बैन भी कर दिया गया इंडस्ट्रियल वेस्ट को वाटर सोर्सेज में फेंकने के लिए, थ्रो करने के लिए। नेक्स्ट, इन दिल्ली सम मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू चेक एयर पोल्यूशन। दिल्ली में कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए हैं एयर पोल्यूशन को चेक करने के लिए। यूरो सेकंड नॉर्म्स हैव बीन इन्फोर्स्ड फॉर कार्स। यूरो सेकंड नॉर्म्स ने कार के इन्फोर्स किया है। तो ऑल न्यू कार्स एडहर टू यूरो सेकंड नॉर्म्स, तो सभी कार्स एडहर टू यूरो सेकंड नॉर्म्स तक। नेक्स्ट, दीज कार्स कोज वेरी लिटिल पोल्यूशन। जो कार्स होती हैं उसके कारण काफ़ी कम पोल्यूशन होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैव ऑल्सो बीन मेड कंपल्सरी इन कार्स। और कैटालिटिक कन्वर्टर को भी ज़रूरी कर दिया है कार्स में बनाने के लिए। दीज कन्वर्टर्स कन्वर्ट हार्मफुल गैसेज इनटू हार्मलेस वंस। जो कन्वर्टर्स होते हैं ये हार्मफुल गैसेज को कन्वर्ट कर देते हैं हार्मलेस वंस में। ऑल बसेस रन ऑन नॉन पॉल्यूटिंग सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और सभी बसेस वगैरह नॉन पॉल्यूटिंग सीएनजी पर ही चलती हैं। ऑल कमर्शियल व्हीकल्स दैट आर मोर दैन 15 ईयर्स ओल्ड आर नॉट अलाउड टू रन ऑन द रोड। और सभी कमर्शियल व्हीकल्स को जो भी 15 साल पुराने हो चुके हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता है रोड पर चलने के लिए। नो मोर फेस्टिव ऑर्गेनाइजेशन सच एज द वर्ल्ड वाइड फंड WWF एंड नेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN एंड encourage people to save forest and wildlife। जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि वर्ल्ड वाइड फंड WWF और इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, ये इंकरेज किए गए हैं पीपल के द्वारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज, आवर सर्वाइवल ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द थिंग्स दैट आवर एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड अस। अर्थ पर हमारे सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें डिपेंड होती हैं वो एनवायरनमेंट पर है कि एनवायरनमेंट क्या प्रोवाइड करता है, क्या देता है। इंपॉर्टेंट अमंग दीज आर एयर, वाटर, सॉइल, फूड, फ्यूल्स, फाइबर्स एंड मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग हाउसेज। और काफ़ी ज़रूरी है इन सब में से एयर, वाटर, सॉइल, फूड, फ्यूल्स और मटेरियल्स जो हाउसेज बनाने के लिए यूज़ होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। दीज आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज, इन सभी को हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। वी ऑल हैव टू मेक एफर्ट्स इट कैन प्रिजर्व अवर नेचुरल एनवायरनमेंट। हम सभी को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए। ऑल नेचुरल सोर्सेज लाइक वाटर, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड कैन बी कंजर्व। और सभी नेचुरल रिसोर्सेज को वाटर, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, फ्यूल्स इन सबको कंजर्व करना चाहिए। कंजर्वेशन इज अ वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। है वो वाइज और केयरफुल यूज है रिसोर्सेज का। कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स नॉट ओनली प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ सोर्सेज बट ऑल्सो मेंटेनिंग देयर क्वालिटी। जो कंजर्वेशन होते हैं वो सिर्फ वेस्ट सोर्सेज के वेस्टेज को ही प्रिवेंट नहीं करते हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि इनकी क्वालिटी को भी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट, हाउ कैन यू सेव योर एनवायरनमेंट। आप कैसे अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। फर्स्ट इज टू नॉट थ्रो गार्बेज एंड वेस्ट ऑन रोड्स। आपको गार्बेज को और वेस्ट को रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। दे शुड ऑलवेज बी थ्रोन इन अ डस्टबिन। आपको हमेशा डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। सेकंड इज टू नॉट यूज पॉलिथीन बैग, यूज क्लोथ पेपर और जूट बैग्स टू कैरी थिंग्स। आपको पॉलिथीन बैग से यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको क्लोथ बैग्स, पेपर बैग से जूट बैग यूज़ करना चाहिए चीज़ों को कैरी करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, वॉक ऑन फुट और यूज साइकिल्स टू गो टू शॉर्ट डिस्टेंसेस। आपको फुट का, आपको साइकिल्स वगैरह शॉर्ट डिस्टेंसेस तक जाने के लिए आपको पैदल चलकर जाना चाहिए, फिर साइकिल्स का यूज़ करना चाहिए। डू नॉट वेस्ट पेपर एंड प्लास्टिक इन दिस स्कूल और एट होम। आपको पेपर को और प्लास्टिक को वेस्ट नहीं करना चाहिए स्कूल में या फिर होम में, मतलब घर में। आपको पेपर और प्लास्टिक दोनों को ही वेस्ट नहीं करना चाहिए, घर में भी और स्कूल में भी। यूज़ बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, पेपर को दोनों तरफ से यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्ले एंटरटेनमेंट गैजेट्स एट अ लो वॉल्यूम। आपको एंटरटेनमेंट गैजेट्स के साथ कम वॉल्यूम पर ही खेलना चाहिए। नेक्स्ट, प्लांट ट्रीज इन योर स्कूल कैंपस एंड नेबरहुड। आपको अपने पड़ोस में और स्कूल कैंपस में प्लांट्स वगैरह लगाने चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए। हाउ टू सेव अवर नेचुरल रिसोर्सेज। हम कैसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। We should use our natural resources very carefully and conserve them as much as possible because unlimited and indiscriminate use of natural resources will make them get exhausted soon। हमें अपने natural resources का काफ़ी carefully use करना चाहिए और वो conserve करना चाहिए जितना भी possible हो सके, क्योंकि
अनलिमिटेड और इंडिस्क्रिमिनेट यदि हम यूज़ करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का तो वे जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट, फॉर दिस वी कैन डू द फॉलोइंग। फर्स्ट इज फॉसिल फ्यूल्स शुड बी यूज वाइजली एज दे आर लिमिटेड। हमें फॉसिल फ्यूल्स का वाइजली यूज़ करना चाहिए क्योंकि वे लिमिटेड होते हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी शुड बी यूज एज मच एज पॉसिबल। और जो एनर्जी की दूसरी फॉर्म्स होती है जैसे कि सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हमें जितना पॉसिबल हो सके इनका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, instead of domestic fuels and energy, we should use efficient and well-maintained stoves and machines. डोमेस्टिक फ्यूल्स और एनर्जी को सेव करने के लिए, बचाने के लिए हमें एफिशिएंट यूज़ करना चाहिए और वेल मेंटेन स्टोव्स और मशीन का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड कट डाउन ऑन एक्सेसिव यूज ऑफ एसी, हीटर्स, गीजर्स एक्सेट्रा टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए हमें एसी, हीटर, गीजर एक्सेट्रा इनका यूज़ को कम कर देना चाहिए। नेक्स्ट, माइनिंग ऑफ ओर्स शुड बी डन केयरफुली विदाउट वेस्टेज। और माइनिंग ऑफ ओर्स हमें केयरफुली करना चाहिए बिना वेस्टेज के। ओवर माइनिंग शुड बी अवॉइडेड। ओवर माइनिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए। रिसाइकलिंग इज एन इफेक्टिव मेजर टू रिड्यूस पॉल्यूशन। जो रिसाइकलिंग हम इफेक्टिव मेजर है पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। इन इट न्यू यूजफुल थिंग्स आर मेड फ्रॉम वेस्ट थिंग्स। और इसमें से नई नई चीज़ें, यूजफुल चीज़ें बनती हैं वेस्ट थिंग्स से। ब्रोकन ग्लास कैन बी मेल्टेड टू मेक न्यू थिंग्स ऑफ ग्लास। हम टूटे हुए ग्लास को पिघला करके और नई ग्लास की चीज़ें बना सकते हैं। वेस्ट पेपर्स एंड ओल्ड कॉटन क्लोथ्स आर मेड इनटू पल्प एंड टर्न इनटू पेपर एंड कार्डबोर्ड। वेस्ट पेपर्स और ओल्ड कॉटन क्लोथ्स को हम बदल सकते हैं, पल्प बना सकते हैं और उनको पेपर कार्डबोर्ड में रिटर्न कर सकते हैं, बदल सकते हैं। वेस्ट प्लास्टिक लाइक ओल्ड पीवीसी एंड फोम, चप्पल, शूज, टॉयज एंड बॉटल्स कैन बी मेड इनटू न्यू प्लास्टिक आइटम्स आफ्टर मेल्टिंग। जो वेस्ट प्लास्टिक्स होते हैं जैसे कि ओल्ड पीवीसी, फोम, चप्पल, शूज, टॉयज, बॉटल्स, इन सभी से हम न्यू प्लास्टिक आइटम्स बना सकते हैं इनको पिघलाने के बाद। आयरन फ्रॉम टिन कैंस, एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉटल कैप्स कैन बी यूज टू मेक न्यू थिंग्स। जो आयरन होते हैं टिन कैंस में से और एल्यूमिनियम बोतल कैप्स में से हम इनका यूज़ कर सकते हैं नई चीज़ें बनाने के लिए। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रिसाइकलिंग। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं रिसाइकलिंग के। दिस पिक्चर शोज रिसाइकलिंग शुड बी इनकरेज। Mind sparkle first is environment is everything that is around us wherever we happen to be। जो environment है वो सभी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, जो भी होती रहती हैं। Second is pollution is the release of substance in air, water or soil that are harmful to living beings। जो pollution है वो सब्सटेंस है जो हवा, पानी और मिट्टी के अंदर रिलीज होता रहता है, जो काफ़ी हार्मफुल भी होता है सभी लिविंग बींग्स के लिए। नेक्स्ट, थर्ड इज एयर पोल्यूशन may be defined as the occurrence or release into the atmosphere of any pollution materials or gases which are harmful to man, vegetation, animals or buildings। तो एयर पोल्यूशन है वो डिफाइन किया जाता है अकरेंस और एटमोसफेयर में जो पॉल्यूशन मटेरियल और गैसेज होते हैं उनका रिलीज होना जो काफ़ी हार्मफुल होते हैं मैन, वेजिटेशन, एनिमल्स और बिल्डिंग्स के लिए। फोर्थ पॉइंट, वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय डंपिंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक सीवेज, गार्बेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज। जो वाटर पोल्यूशन है इसके कारण जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि सीवेज, गार्बेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये वाटर बॉडीज में डंप हो जाते हैं जिसके द्वारा वाटर पोल्यूशन बढ़ता है। नेक्स्ट, पोल्यूशन कंट्रोल मीन्स प्रिवेंटिंग द पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम कंटेमिनेटिंग द एयर, वाटर एंड सॉइल। पोल्यूशन कंट्रोल का मतलब है कि कंटेमिनेटिंग एयर, वाटर और सॉइल को हम प्रिवेंट करें, बचा कर रखें। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन इज द वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो कंजर्वेशन है वो वाइज और केयरफुल यूज है रिसोर्सेज का। लास्ट इज रिसाइकलिंग इज एन इफेक्टिव मेजर टू रिड्यूस पोल्यूशन। जो रिसाइकलिंग है वो इफेक्टिव मेजर है पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। दिस इज क्लियर, द चैप्टर इज कंप्लीट।